السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل فلسطینس مز یت پتمیو کینژو دو پہ اسرائیلی فورسز طرف فلسطینک عام لوگ گولین ہند نشانہ بناونہ تت رات رٲژ دوران اسرائیلی فوج مسجد اقصی کس سرنس مز داخل سپدمت یتھ دوران لوکو طرف فورسز کاروٲیی خلاف احتجاجی مظاہرے کرنا آئے مظاہرین تو فورسز اہلکارن درمیان یت جھڑپ سپز تت جھڑپن دوران ہتواد لوگ زخمی سپدمت یل زن پتمس اکس ہفتس دوران اسرائیلی کاروٲیی دوران کیا لوگ جاں بحق تو ہتواد لوگ زخمی سپد اسرائیلی کاروٲیی خلاف یہ دنیا کن کیاہن ملکن مز احتجاجی مظاہرے کرنا آئی یتھ دوران بین الاقوامی برادری پہ زور دن آو تم گھن فلسطینس مز اسرائیلی کاروٲیی پہ ٹھاک لاگنس مز پن رول ادا کریں تت UN چیف سیکرٹرین فلسطین کس صورتحالس پہ تشویش اظہار کران اسرائیلس پہ زور دتمت خطس مز کشیدگی کم کرنس حوالے گھن سنجیدہ قدم تلن یل زن یورپی یونینس علاوہ یورپ پوپ فرانسن تشدد ختم کرنے کی ضرورت پہ زور دت یہ اکہ طرف اسرائیلی فوج طرف نتھن تو موسوم فلسطینی لوگ جاں بحق کرنس حوالہ گولن ہند بے تاش استعمال کرنے تت دویمہ طرف طاغوتی نظام طرف فلسطین کن کیاہن علاقن مز بجلی سپلائی بند کرنس علاوہ صاف چناب تو دویم بنیادی سہولیت بند کرنا آمت یم ست علاقن مز روزن والن لوکن ہند دہ گزارن سٹھ مشکل سپدمت essa sia luogo di incontro e non di scontri violenti, luogo di preghiera e di pace. Invito tutti a cercare soluzioni condivise affinché l'identità multireligiosa e multiculturale della città santa sia rispettata e possa prevalere la fratellanza. افغانستان کس کابل علاقس مز یہ اکس سکولس برو کن رات بارودی دھماکہ سپدن 60 کھت زیادہ طالب علم تو دویم لوگ جاں بحق سپد تت آز افغانستان کس زابل تو پروان علاقس مز الگ الگ بم دھماکہ سپدمت یتھ دوران 1 درجن کھت زیادہ لوگ جاں بحق تو کیا درجن لوگ زخمی سپد یہ کت باون لائق یہ غیر ملکی فوجوں طرف افغانستان خالی کرنس حوالہ قدم تلن آئی تت دہشت گرد کاروائین مز اضافہ وچھن یل زن سکولس برو کن سپدمت دھماکہ مذمت افغان طالبان طرف تہ کرنہ آمت رات رٲژ دوران یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سن خوشنودی حاصل کرنس مز مہو تت داورن نوگام بڈگامس مز پلسس آز صبح اکس نوجوان زنی ہز لاش مشکوک حالتس مز برآمد سپزمز یل زن زنی ہندو رشتہ دارو طرف الزام عائد کران ون آو محمود ناوچ نوجوان زن ویرویو طرف قتل کرنا آمز تو ات مز ملوث لوکن خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہ مز اننہٕ یہ کت باون لائق یہ زنین ہندین حقوقن حوالہ تو زنی ہز اہمیت گٲشرنس دوران ون اخ مکمل تو پائیدار سماج تیار کرنس مز زنی ہند اہم رول تیل کیا وجہ مسلم اکثریت ولس علاقس مز پریت گزرونس دہس ست معاملہ برو کن یوان صبح اہد ہہربا میں فون کر 6 بجے تو 22 منٹ جناب بیری دپن ہے یہ ہسا درائے اختر لال باتھ روم مس اچھا دپن یہ نہ آئی اور واپس مس ہے باتھ روم چھو تھی اندر کن تہ نیبر کن تہ اما باتھ رومس تین لگن امس 2 منٹ اگر یہ نیبر تہ نیرِ یتس کالس کیا ژھانڈ ون نا یہ کوت گئی دپن آز اے ژھانڈ اور یور سارسی یت نہ نن کی یہ ہن ون اہد خاندارن وون دپن مے پوچھ ییٚلہِ امس امہ پتہٕ کوٚر اہندس خاندارس فون تٔمِس چھُ ناو محمد شفیع مے کوٚر تٔمِس فون مے پوٚژھ ہے یہ کوٚت سا گٔے دپن ہے پایی نہ چھنہٕ سۄ چھِ دارِ کِنۍ ژٔجمٕژ بیسکلی چھِ یِمو یہِ مٲرمٕژ حظ اتھ راتس منٛز یہ بچی چھِ یِمو مٲرمٕژ أمِس چھِ یِمو پھٲسۍ دِژمٕژ گرِ مٲرکھا تہِ زانن تِم بیٚیہِ زانہِ وحدہ اللہ شریٖف امہ پتہٕ چھکھ تُجمٕژ نِمٕژ تقریباً 1.5 فٹ دوٗر 1.5 فٹ دوٗر چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ یہِ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ پیٚیہِ اِنسانس نظر تہِ سودن شین تان گاش چھِ یِوان دۄنٕے پانٛژھ یِمن آو نہٕ امہِ پتہٕ أتھۍ گوٚو بیسکلی اوس یِمن یہِ پروگرام بناوُن پتہٕ کٔر یِمو فون حظ بنٛد کیٛاہ کٔرِکھ أسۍ ؤتھۍ تہٕ وٲتۍ حظ اور
अस कोर जनाब पुलिस इन्फॉर्मेशन ये पे दलील अस हमशेर आम बागी नवगाम बागई दारवा नवगाम अस यू सा तो पुलिस आव जनाब तुज लाश वात योर त्रार शरीफ योथनस पे वो बह चीज गुजारिश कर SP साहबस गवर्नर साहबस खुदा रहा महज रसूल ताजदार सी पास भी शाहबोज हमेशा भी कदर पास अस दीतो इंसाफ यमन कातिलन यम कातिल यमन गस फाश लगन ति सान वुचन दुरुस मुल्क सान ये जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित आम लूकन हुंद दो गुजारन मुश्किल तो इंतजामिया निज़ाम दरहम बरहम सपुद तत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ खत्तस मज लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने हवाले 17 मई ताम मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू नाफिज करना आमुत या दौरान आज जम्मू कश्मीर हिंदन 10 जिलन मज अमि कर्फ्यू असर वुचन आव माफी दी यह बूझू बे अक फिर या दौरान आज जम्मू कश्मीर हिंदन 20 जिलन मज अमि कर्फ्यू असर वुचन आव या दौरान कारवरी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं दिन गुन मुतासर वुचन यल जन इंतजामिया तरफ जाय जाय फोर्सेस एहलकार हज हुरेमान छक तैनात करना आम या दौरान कईहान जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वतन पे ठहर पौध कर वत आमद रफ्त बापत बंद कर आम यह कत बावन लायक ये पतमो 2 हफ्तों पे जम्मू कश्मीर हिंदन तमाम जिलन मज इंतजामिया तरफ बंश तो पाबंदी आयद कर आम युत जन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज इंतजामिया आसानी सपद ताहम जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मुतासर लूकन तो मरन वालन लूकन हिंदिस तदादस मज प्रत दह इजाफ वुचन यम किन इंतजामिया परेशान तो आम लूकन मज दहशत वुचन जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस पे काबू प्रावन बापत ये इंतजामिया तरफ लूकन अथवास करने अपील कर तत मौजूद सूरत हाल दौरान लूको तरफ इंतजामिया भरपूर अथवास करना आमुत यल जन कईहान इलाकन मज गरीबी हिंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वालन लूकन हिंद बापत मौजूद सूरत हाल दौरान दह गुजारुन सठई क्रूट सपदमुत यपर सिक्किम सौर तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित जनरल OPD खदमात फिलहाल मुअत्तल करनुक ऐलान करान वन आव खास हेल्पलाइन नंबर यह जारी करने युत जन मरीजन माहिरन हिंद मशवर हासिल मशवर हासिल करित हेकन तो हपर मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ वादी मज बानहल बारामूला रेल सर्विस ते फिलहाल अक हफ्ते बापत मुअत्तल करने ऐलान करना आमद जो आ रहा है ईद की सूरत में इस सिलसिले में हमें थोड़ा बहुत खरीदने की जो है कि इजाज़त मिल जाए ताकि जो बहुत सारे दिनों से हम इस वक्त अपने घरों में कैद हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो चीज़ें हम खरीद सके जिससे कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही एक गुजारिश है लोगों से, बस यही गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि SOP का स्ट्रिक्टली फॉलो करे और भीड़ भाड़ जमा न करे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर। देखो सर वसीम भाई, मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कर्फ्यू है सर। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है, यहाँ पे आपको पता है डोडा में कितना अभी यहाँ पे कोरोना वायरस बढ़ रहा है। यहाँ पे वैसा तो हमने देखा नहीं, सुबह से बहुत भीड़ भाड़ देख रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब कि कोई यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा भी नहीं देखा यहाँ पे। मतलब कोई गरीब बेचारा अगर बाहर निकलेगा कुछ दवाई शवाई लाने, उसको पीछे से दौड़ेंगे, डंडा मारेंगे। अलबत्ता जो दूसरे लोग हैं उनको कोई यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा है। वो सर एडमिनिस्ट्रेशन की और किसकी लापरवाही सर। अगर यहाँ पे उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, कम से कम उनको देखना चाहिए, भीड़ भाड़ हर जगह काम किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मौजूद सूरत हाल दौरान ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जमिस मज कोरोना वायरस सहित मरन वालन लूकन हुंद बोड़ तादाद वुचन आव, तत कॉलेज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे हस्पताल मज तैनात अमल चुकसान फरज अंजाम दिवान तो लूकन पज अत पे एतमाद थाउन कि हमारे इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिसमें हमारी मशीनरी इक्विपमेंट और हमारे सिपाही, जिनमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स जो एक जोश के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी तरफ से दिन प्रतिदिन जैसे चुनौती बढ़ रही है वैसे ही उनके जोश में बढ़ावा हो रहा है और हम भी अपने कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं। चुनौती जैसे बढ़ रही है वैसी ही हमारी जो तैयारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, आज की डेट में 721 लोग हमारे पास दाखिल हैं
और वो दुख की बात है कि वो सिख हैं सारे, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से सांस भी ले पा रहे हैं। 2% लोग ऐसे हैं जो खुद सांस ले पा रहे हैं, बाकी सारे असिस्टेड वेंटिलेशन पे हैं। तो कोई भी जैसे हम सब ने भगवान को देखा नहीं लेकिन विश्वास पूरा है उन पे, वैसे ही अपने सिस्टम पे, अपने लोगों पे, अपने इन प्रोफेशनल्स पे भरोसा। मौजूदा सूरत हाल दौरान ये इंतजामिया तरफ लुकन 2 रेतन मुफ्त राशन फराहम करने ऐलान करना आव, तब राशन हासिल करने वालों सारफो तरफ राशन फराहम करने अमले हवाले नाराजगी हूं इजहार करान इंतजामिया मांग करना आमुज मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित गि नेट करने वरय सारफन राशन फराहम करने युन, युत जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने यी। जिले बडगमिस मज ये आज लूको तरफ मुफ्त राशन हासिल करना आव, ताहम लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुज लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने बापत गसन संजीदा कदम तुलने। आजकल आप देख रहे हो कि बड़गांव में भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो अगर ये जो अंगूठा मतलब ये करवा रहे हैं, इसके बारे में है कि हमें लग रहा है कि जहाँ पर अब ये चावल जा रहा है, जिसके घर जा रहा है, उनको भी मत इसके ये हो सकता है। अगर इससे बेहतर ये होगा कि इनको ये अंगूठा मेरे ख्याल से बंद ही करवाना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पत ये इंतजामिया तरफ टेस्टिंग मुहिम तेज करने आमज, तब जनूबी कशीर हंदिस काजगुंड इलाकस मज इंतजामिया तरफ शुरू करना आमज मुहिम जारी, यल जन मुकामी लूको तरफ वन आव ये इंतजामिया तरफ समाजी दूरी हज अपील करने ताहम चुन टेस्टिंग सेंटरस पे समाजी दूरी हूं कह ख्याल थवना आमुत, यम किन मुकामी लूक तजब्जुब शिकार सपद। लास्ट टाइम मैंने जब टेस्ट किया 4 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आया, तो मैंने खुद को आइसोलेट किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो 4 दिन बाद रिपोर्ट आए, ये एक इंसान के लिए उतना वैलिडिटी कहाँ से रखता है ये रिपोर्ट। मतलब इससे प्रॉब्लम होती है अगर बंदे को पता चले कि एक दिन में मैक्सिमम 24 आवर्स, जो कि मैसेज भी उस टाइम आती है कि आफ्टर 24 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन जब 72 आवर्स या उससे ज़्यादा टाइम डिले हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ताकि खुद को एक पेशेंट आइसोलेट करे। अगर यहाँ से वो टेस्ट जाके फिर घूमता रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को भी प्रॉब्लम है। तो क्या डिमांड कुछ नहीं है, बस यही है कि इसकी रिपोर्टिंग जो टेस्ट रिपोर्टिंग टाइम है वो एटलीस्ट 24 आवर्स 36 आवर्स तक आना चाहिए। जो अब यहाँ 50-100 लोग जमा होते हैं, इनमें पॉजिटिव निकलते हैं लोग, अब जो सारे भीड़ इकट्ठे जो हो रहे हैं इनको क्या बनेगा? ये बोला पहले 100-50 आदमी जमा हो जाएगा फिर हम करेंगे टेस्ट। ये किस कानून में लिखा है? किसने दिया इनको ऑर्डर? इनको बैठना है सुबह से शाम तक 4 बजे, एक आदमी आएगा उनको भी टेस्ट करो, 5 आदमी आएगा उनको भी टेस्ट करो। ये लोग मान रहे ही नहीं रहे, ये अपना ही कानून नहीं। लोगों का क्या काम होगा? लोग पागल है इस टाइम, लोग पागल हो गए बीमारी से, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास राशन नहीं है, लोग क्या करेंगे? ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। यहाँ शुमाली कशीर हंदिस जिले वरमलिस मज ये कोरोना मामले ब्रो कुन यन पत इंतजामिया तरफ इंडोर स्टेडियमस मज कोविड सेंटर कायम करने आव, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि कोविड सेंटरस मज 60 बेडन हुंद इंतजाम थवना आमुत, यमन मज 20 बेड हाई फ्लो बनाने आए, तो मजीद 40 बेड ति हाई फ्लो बनाने कोशिश जारी, युत जन कोरोना मरीजन हुंद इलाज करनस मज आसानी सपद। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कोरोना मामले नजर तल थवित दोयम कया कदम तुलना आमत, युत जन जिले कन लूकन मुश्किल वेतरन पेन। दिस मोमेंट के हम अपनी जो हाई फ्लो बेड कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं हम। अब हम एडिशनली जो हमारे पास 60 बेड यहाँ पे थे, 20 पे ऑलरेडी हाई फ्लो चल रहा था, तो जो बाकी के 40 बेड हैं हम उनको भी हाई फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल में भी एक एरिया हमने डिजिग्नेट किया हुआ है, वहाँ पर भी तकरीबन 60 बेड के करीब फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। और मैं आपकी नोटिस में ये भी लाना चाहूँगा कि हमने 1000 लीटर का जो ऑक्सीजन प्लांट था हॉस्पिटल में, उसको आज इंशाल्लाह कमीशन करना है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बेड कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी बढ़ रही है, और बाकी जो बेसिक नीड्स हैं पेशेंट्स की, जैसे दवाइयाँ हैं, फूड वगैरह है, हाइजीन है, उसको हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं और दे भी रहे हैं।
रेमडेसिविर की इनिशियली शॉर्टेज रहती थी, लेकिन अब वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेगुलरली मिल रहा है। तो इस वक्त कितने पॉजिटिव केसेस है यहाँ पे इस कोविड सेंटर में जिनका इलाज चल रहा है? अभी हमारे पास तकरीबन 70 पेशेंट हैं यहाँ जी यहाँ पे, और तकरीबन 30 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भी। अगर हम SOPs का फॉलो करते हैं तो वेव को हम ब्रेक कर सकते हैं जी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम अफसर ते मौजूद स दौरस दौरान ये तिमो अस्पताल के कामकार जायज हेत तत तिमो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ते मुआयन कोर्मुत यल जन तिमो अत मौके पे वोन ज मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित अस्पताल मज माकूल इंतजाम करना आमत युत जन और इन वालन मरीजन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जो JNM हॉस्पिटल वहाँ 1950 के आसपास जो LPM परमानेंट है वो कैपेसिटी पूरी तरह से चल रही है। तो अभी जो छोटा मोटा एक मसला हो गया था कि पावर स्विच ऑफ हो गया था, तो चूंकि उसमें 2-4 मिनट का सफ़र टाइम लग भी जाता है, तो उसमें दिक्कत हो गई थी कि सिस्टम में सिलेंडर में जो गैस आती है तो उसमें थोड़ी सी वो वेरिएशन और कमी हो गई थी। लेकिन चूंकि उसका बैकअप ये होता है कि मैनिफोल्ड सिस्टम जुड़ा हुआ होना चाहिए और सिलेंडर का जो बैकअप सप्लाई होता है वो कंटिन्यूस इसकी वो बैकअप में होनी ही होनी चाहिए। तो आज से ये डिसीजन हो गया कि यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो ऑक्सीजन प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं, बेसिकली वही टेक्निकल मैन पावर होता है जो रेगुलेशन में पूरी तरह देखता है। उन्होंने पूरा रोस्टर अब लगा दिया विद टेलीफोन नंबर्स कि 1 मिनट की या आधे मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम की डिले या ऑक्सीजन की थोड़ी सी वो जो वेरिएशन आती है। अब उसका दूसरा सोल्यूशन भी, जैसे MS यहाँ पे हमारे डॉक्टर बिल्किस जी हैं, उनके पास सिलेंडर्स मौजूद है। वो उनका कहना है कि जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है तो हमें पता होता है कि उसको जो उनके पास अपना बैकअप है सिलेंडर्स का, वो उसको उस प्रेशर को रिप्लेनिश करने के लिए दे देते हैं। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है बेसिकली इम्प्रूव करने का। अभी ये नया है, बीमारी भी ऐसी है कि अभी पूरा सबको होल्ड नहीं है चीज़ों पे, लेकिन ऐसा है कि सब लोग इस वक्त जो यहाँ बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो उसको हम सब मिल के रिमूव करें ताकि बीमार को। डांगरपुर सोपर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाक मज लुकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कया वरी ब्रो इमारत तमीर करना आई, ताहम छन आज ताम इमारत इस्तेमाल मज अन्न आमज यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इमारत काबिल इस्तेमाल बनानस हवाले गसन कदम तुलने यीन युत जन सु मकसद पूर सपदे यम बापत अख कसीर रकम खर्च करना आव तो लोग पतम कया काल पे अमुक इंतजार करान। 2006 में 2007 में इसकी संगी बुनियाद डाली गई मंगत राम शर्मा के जरिए से। उस वक्त यहाँ के MLA थे हाजी अब्दुल रशीद डार साहब और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और कुछ काम उन्होंने इसके लिए किया और अस्पताल की संग बुनियाद तब से आज 2021 है, 2021 तक आज 14 साल हो गए, इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। कभी महकमा बोलता है महकमा शायद इसके फंड्स नहीं, हालांकि फंड्स अवेलेबल हैं, अगर कुछ इसको पैसे लगते भी हैं इस वक्त कोविड सिचुएशन में इसकी ज़रूरत लगती है, ये काम में लाया जा सकता था। इसी तरह ये जो डांगरपोरा के हॉस्पिटल की ही सिचुएशन नहीं है, ये बोटिंगो में भी एक हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, इसी तरह डिफंक है, इसी तरह शिवा में भी एक हॉस्पिटल, अगर वो काम कर रहा है मगर वहाँ कोई फैसिलिटी है नहीं। हम लोग जो हैं आम लोग, इनको एक उम्मीद थी शायद पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया, गवर्नर राज हो गया, एक उम्मीद थी गवर्नर राज से, मगर गवर्नर राज में भी लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। तकरीरी तौर कहते हैं इतने करोड़ फंड्स हमने दिए, इशू किए, इतने फंड्स मंजूर किए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कुछ भी। यही सरकार से मुतालबात है, एक तो महकमा सेहत काम में सूरत लाए, अगर वो जगह जगह जाते हैं हमारे डायरेक्टर साहब या BMO साहब या कोई इन हॉस्पिटल का भी दौरा करें, एक बार देखें वो यहाँ की हालत क्या है। फॉरेस्ट डिवीजन रोमशी पुलवामिस मज ये जंगल स्मगलरों तरफ कौमी सरमायस नुकसान वातन खबर मौसूल सपदन तक महकमे जंगलात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद जंगल स्मगलरन खिलाफ मुहिम शुरू करना आमज यथ दौरान पतमन कैंसन दोहन मज महकमस सठा कामयाबी हासिल सपज। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यम लूक जंगल स्मगलरी हिंदन वाकन मज मुलवस लबन यन तिमन खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न। जो रोमशी से कुछ शिकायतें आ रही है कि स्मगलिंग की, ये इसमें सही सदाकत है। कुछ दिनों से कुछ हमें वहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहाँ जो है कुछ लोग एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन हमारा स्टाफ भी बड़ा मुतहरिक है, हम वहाँ रोज़ पेट्रोलिंग होती है और इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन में हमने वहाँ
4 घोड़े पकड़े और 2 गाड़ी भी हमने पकड़ी वहाँ पर, और स्टाफ जो है वो पूरा रात वहाँ नाइट पेट्रोलिंग करता है। तो वी आर ऑन जॉब, और हमारा स्टाफ जो है फुली प्रिपेयर्ड है इन चीज़ों को हैंडल करने में। हाँ, कुछ है वहाँ कुछ स्टाफ की कुछ डर है, वो उसको हम देख रहे हैं कि हम उसको हम रेंज को थोड़ा मोर, और उसको हम स्टाफ के हवाले से उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करें। वहाँ हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की भी मदद ले रहे हैं और बाकी एजेंसीज की भी हेल्प ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हम, और इनफैक्ट हमने कुछ PSCs के लिए भी कुछ डोजियर्स सबमिट किए हैं, तो उस पर भी वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो होपफुली कि हम इस जो चीज़ है, जो शिकायत है कि आगे आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे और इस पर हम पूरा काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं। हाजीवारा पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे कैंचन लूकन हज खुदगर्जी तो मुतलिक महकम च गैर संजीदगी किन सासवाद कनाल अबी अवल आब न आस्ति किन खुशक सपुद तो मुकामी जमींदार आवलिनस मज हेन आय, ताहम इंतजामिया तरफ मामलस हवाले कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद जे इलाकस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन जमींदारन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यी। अर्ज कर यह अबी अवल जमीन अस आब ये सड़क दामद दामद पे मे साइड अत त्रे घर वालों नर तो तम गई थद तो नतीज वोत नतीज द्राव पे आब अत जमीन वातान वनकस कहें पे बेकान पे आब तथ दित नरेगा बंद जनाब तथ गई आज तकरीबन 2 रेत बंद कर सह अडलुक तप आब सह आब गो बंद तो जनाब अस वो करो तो करो क्या जनाब मजूर बाप मजूर खाम अयाल पे खाम अयाल जनाब यह सासवाद कनाल जमीन गुजारिश करान ये प्रोग्राम की वसादत SDM साहबस तहसीलदार साहबस नायब साहबस DC साहबस तो अस कर मेहरबानी अस पे कर अत रोट अस दीतो ये आब। खईपुर हंदवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़क हज खस्ता हाली किन लूकन मुश्किल वेतन पेवान तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़क हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलना इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। ये जो खईपुरा गलगांव टू खईपुरा रोड है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का जो फैसला है तकरीबन इतना ही है। तो कई सालों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिपार्टमेंट जो है आज और कल की बात कर रहा है और ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, लेकिन अभी तक जो है काम इस पर पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। जिस तरह से आप देख सकते हैं खड्डे बहुत ज़्यादा है और पानी जब यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो पानी का बहाव जो है रोड के ऊपर आता है, तो बिल्कुल जो गाड़ी जो चलने के काबिल नहीं रहती है कोई भी गाड़ी। हालांकि कभी कभार डिलीवरी पेशेंट होता है या कोई ऐसा बीमार होता है तो सड़क पे चलने की वजह से उसको ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि रोड की जो खस्ता हालत है इसकी तरफ जो है अभी डिपार्टमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि इस रोड को पूरी तौर देखा जाए। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है, अगर नहीं दिया तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए किसी को, ठेकेदार को, या टेंडर बाज़ाब्ता इसके लिए किया जाए। तो इस सीज़न में कम से कम 1 महीने तक जो है इस रोड पर काम लगना चाहिए। नाज़रीन अत खबरनामा तुम रोज़ो वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5। मैं दियो इजाज़त, खुदा सवाल।